हेलो नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू आवर चैनल साइंशिया ब्रेनरी। टुडे इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 8th of March। सो आज हम बात करेंगे कि व्हाई वुमेन इन डे इज सेलिब्रेटेड, व्हाई इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड एंड व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे 2021। सो ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे, क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, वी विल आल्सो डिस्कस इन ब्रीफ द स्टोरी ऑफ ए वुमेन who changed the history of world। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोजालिंड फ्रैंकलिन की, the unsung hero of DNA double helix, whose discovery, whose contribution led to the discovery of double helical structure of DNA and which brought the Nobel Prize in 1962. How this Wonder Woman was kept silent, how she was never acknowledged during her lifetime, and she was always a unsung hero of DNA. But we must say that she was the mother of DNA, and we can say that she has played a critical role in the changing the history of world, changing the history of mankind, and her discovery has brought the revolution in the field of science and technology, the field of medicine, in the field of biology, in the field of agriculture, in everyone's life. So in today's lecture, we will discuss about all these things and about the photograph 51. What is this photograph 51, which was the work of this Rosalind Franklin, and how this photograph, it changed the history of mankind, it changed the history of science. But this woman was never acknowledged during that time, and we can say she was the unsung hero of DNA and Rosalind Franklin. So our today's lecture is a tribute to her, the Rosalind Franklin. So let's discuss in brief about the International Women's Day and about the unsung hero of DNA. So we can see that जो International Women's Day है, that is celebrated every year on 8th of March. ठीक है। So जो 2021 का International Women's Day है, तो according to International Women's Day जो organization है, तो according to them the जो campaign theme है 2021 का International Women's Day, that theme is choose to challenge. So International Women Day 2021, the theme is choose to challenge. So you can see here that a challenged word is an alert word, and from challenge comes change. So let's all choose to challenge. Okay, so this is also to see that how will you help forge a gender equal world. So how we will celebrate the women's achievement, we can raise awareness against the bias or take action for the equality. So you can see that जो International Women Day है, that is celebrated every year on 8th of March, and जो 2021 का International Women Day है, उसका theme क्या है? Choose to challenge. ठीक है, which the purpose is to throw the spotlight on the women and their rights and about their contribution made in the field of our daily life, in the field of science, in the field of technology, social, cultural, in every field. ओके एंड अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो मीन्स अब अगर हम बात करें तो इट इज मोर देन ए सेंचुरी वी आर सेलिब्रेटिंग दिस इंटरनेशनल वुमेन डे। मीन्स इट्स द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल वुमेन डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 1911। सो इंटरनेशनल वुमेन डे फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 1911 में। सो इट्स मोर देन ए सेंचुरी, यू कैन सी दैट इट्स मोर देन ए सेंचुरी दैट वी आर सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सो अगर इसकी बात करें तो इट्स ओरिजिन लाइज इन द लेबर मूवमेंट। एक्चुअली जो एक वुमेन थी जो क्लैरा जेटकिन, ठीक है, सो शी वाज ए मार्क्सिस्ट फ्रॉम द जर्मनी, ठीक है, हर नेम वाज क्लैरा जेटकिन, ठीक है, एंड शी वाज द पार्ट ऑफ बोथ लेबर मूवमेंट एंड वुमेन्स मूवमेंट। मीन्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम शी वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, ठीक है। सो जो क्लैरा जेटकिन थी, शी वाज ए कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट थी, एडवोकेट थी, हु ऑलवेज वर्क फॉर द वुमेन्स राइट, ठीक है। तो अंटिल 1917 शी वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी, ठीक है, एंड आफ्टर दैट शी ज्वाइंड इंडिपेंडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जब इन 1880s में, ठीक है, जब जो जर्मनी के लीडर थे उस टाइम ओटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है, जब इन्होंने एंटी सोशलिस्ट लॉ एनफोर्स कर दिए जर्मनी में, तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो क्लैरा जेटकिन है, शी means she left the Germany and she went into a self
exile, means we can say that she left the Germany, जर्मनी छोड़ के वो स्विट्जरलैंड चली गई, ठीक है, स्विट्जरलैंड में रही और कुछ टाइम वो फ्रांस में भी रही, ठीक है। तो ड्यूरिंग 1880s में, और जब वो जर्मनी से वापस आई, मतलब जब वो जर्मनी को वापस आई फ्रॉम हर एग्जाइल, सो जब वो वापस आई सो शी बिकेम द एडिटर ऑफ डाई ग्लिचेट, ठीक है, इक्वलिटी मीन्स एक जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसका न्यूज़पेपर था, तो उसके वो एडिटर बन गई, ठीक है, फ्रॉम 1892 टू 1970 तक उसका वो एडिटर रही, ठीक है। सो जो जब वो उसकी एडिटर थी मीन्स इन द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो शी वाज आल्सो इन ए क्लोज एसोसिएशन विद रिवोल्यूशनरी एंड थिंकर एंड रोजा लग्जमबर्ग, ठीक है। सो जब 1910 में एंड इन 1910 में यस 1910 में मीन्स 3 years आफ्टर शी बिकेम ए co-founder of International Socialist Women's Congress, ठीक है। So in 1910 में when she became the co-founder of means after 3 साल बाद after co-founding the International Socialist Women's Congress, जो क्लैरा जेटकिन है, इन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में प्रपोज किया कि we will celebrate the Women's Day every year in the country on 28th of Feb, ठीक है। सो इन्होंने प्रपोज किया एंड जो जितने भी मेंबर थे कॉन्फ्रेंस में या जितने भी कंट्रीज के पार्टी मेंबर थे या और भी जो मेंबर थे वर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्फ्रेंस, दैट कॉन्फ्रेंस, जो उन सभी ने जो क्लैरा जेटकिन ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया एंड ऑन दैट इवेंट, मतलब जो 1911 में फर्स्ट टाइम द वुमेन्स डे वाज सेलिब्रेटेड फर्स्ट टाइम, ठीक है। बट आफ्टर 2 years, मतलब 2 साल के बाद इन 1913 में क्योंकि जो डेट वाज चेंज टू ऑन 8th of March, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस इट वाज चेंज टू 8th of March and which was acceptable for all, and from that time on 8th of March means universally it was accepted, this date was accepted as the International Women's Day. So इसलिए from that time so we can see that it's more than a century, एक सेंचुरी से भी ज्यादा का टाइम हो गया कि we are celebrating the International Women's Day every year on 8th of March. So this was the story behind this we can say that constitution of International Women's Day which is being celebrated even more than a century. So जो अगर हम इंटरनेशनल वुमेन डे की बात करें तो इसको कुछ कलर भी है जो इसको सिंबलाइज करते हैं, तो जिसमें कि है पर्पल, ग्रीन एंड व्हाइट कलर है, जो कि अकॉर्डिंग टू जो इंटरनेशनल वुमेन डे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें देख सकते हैं कि जो 3 कलर हैं जो इसको सिंबलाइज करते हैं, पर्पल, ग्रीन एंड व्हाइट। जो पर्पल कलर है दैट सिग्निफाइज जस्टिस एंड डिग्निटी, ठीक है, और जो ग्रीन कलर है दैट सिंबलाइजेस होप, ठीक है, और जो व्हाइट कलर है दैट रिप्रेजेंट्स ए प्योरिटी। ऑल्दो जो ये था ये कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट था, बट यू कैन रिमेंबर दैट 3 colors पर्पल, ग्रीन एंड व्हाइट विच सिंबलाइजेस द इंटरनेशनल वुमेन्स डे which signifies justice, dignity, hope and purity, okay। and जो ये कलर का कंसेप्ट है एक्चुअली इट वाज ओरिजिनेटेड इन 1908 में इन द यूके में, ठीक है, ड्यूरिंग द वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन के द्वारा, ठीक है। और जैसे कि हमने बात कर रहे थे कि जो इंटरनेशनल वुमेन डे 2021 है जो चैलेंज टू वर्ल्ड, ठीक है, तो यू कैन सी दैट इट्स थीम वाज choose to challenge, choose to challenge according to IWD International Women Day, the theme is choose to challenge। but जो UN है यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग जो they have kept the theme for 2021 is women in leadership achieving an equal future in a COVID-19 world। so this is the theme as per the UN and that is the theme, choose to challenge is the theme as per the IWD, okay। so you remember this thing, okay। So in this context, this was all about the story of the International Women's Day। So जैसे कि मैं बात कर रहा था कि on the occasion of International Women's Day, we will also discuss about the story of unsung hero, the woman who changed the history of the world, ठीक है, who was never acknowledged during her lifetime and who was always kept silent, ठीक है। So we will talk about that Wonder Woman who had made actually a significant contribution in changing the history of mankind। So आप सभी जानते हैं कि what this remarkable we can say that this historical picture, okay, the Watson and Crick, ठीक है, and this is the double helical structure of DNA। so हम सभी जानते हैं कि जो discovery of the double helical structure of DNA जो है, ठीक है, that was one of the biggest breakthrough or revolutionary breakthrough थी which changed the history of the world and which has played a significant contribution in the field of
science, technology, medicine, biology, health, in the disease treatment, in drug designing, everything means everything. ठीक है. So we know that DNA is the genetic hereditary material. ठीक है, genetic material है which carry information from one generation to another. DNA is everything. ठीक है, ATGC nucleotide sequence. So इस डिस्कवरी, सो जो है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का जो डिस्कवरी था, दैट वाज ए रिमार्केबल डिस्कवरी ऑफ दैट टाइम ऑफ द 20th century and which brought a revolution. So for this discovery, you can see here there's three persons who they were awarded Nobel Prize in 1962 में in the field of physiology or medicine. ठीक है, which was Watson, James Watson, Francis Crick and Maurice Wilkins. ठीक है, who shared the Nobel Prize in 1962 में in the field of physiology or medicine for the discovery of double helical structure of DNA. But there is one unsung hero who was kept silent and who was never acknowledged. Actual में जो रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है, whose discovery actually led to the foundation, means her discovery was the foundation. She was the pioneer of this double helical structure of DNA. So her discovery was the foundation for the exploration of this double helical structure of DNA, for which these three people, they were awarded Nobel Prize in field of physiology or medicine. But she was always means kept silent. Okay, but it was actually her pioneer work which resulted into the discovery of a double helical structure of DNA. So let's see what is the story behind this. So अगर हम रोजालिंड फ्रैंकलिन की बात करें तो मीन्स वी विल सी इन टुडे दैट हाउ ए वुमेन्स डेडिकेशन टू द साइंस इट प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन डिकोडिंग द फंडामेंटल मिस्ट्रीज ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, हाउ ए वुमेन, दिस वंडर वुमेन, इट चेंज द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, हु हेल्प्ड इन हर डेडिकेशन, हर डिवोशन led to the discoveries of fundamental discoveries of life, means decoding the fundamental mysteries of life, who we are, how information is carried from one generation to another generation, what is DNA and all. ठीक है, so रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है, she is famously, अगर बात करें तो she was an X-ray crystallographer. ठीक है, and whose work played a critical role in understanding the molecular structure of DNA, RNA, viruses and graphite. ठीक है, so she was basically a X-ray crystallographer and English chemist थी. ठीक है, अगर इनके बर्थ की बात करें तो she was born on 25th of July 1920. Okay, but unfortunately she died at the very young age of 37 during 1958. ठीक है, 4 years before the award of Nobel Prize. Okay, so she took birth on 25th of July 1920 in a Jewish family in the England. Okay, and she was best known for her work on crystallography, viruses, DNA, RNA viruses, and graphite and coal mines. Okay, and her work on actually viruses, on exploring the viruses structure. ठीक है, that led to the foundation of the field of structural biology actually. ठीक है, so अगर हम बात करें तो फ्रैंकलिन, जो रोजालिंड फ्रैंकलिन है, आफ्टर मीन्स शी अटेंडेड द सेंट पॉल्स गर्ल्स स्कूल बिफोर स्टडीइंग द फिजिकल केमिस्ट्री एट शी स्टडी द फिजिकल केमिस्ट्री एट द न्यूनहैम कॉलेज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में स्टडी किया. ठीक है, एंड जब 1941 में आफ्टर कंप्लीटिंग हर ग्रेजुएशन, ठीक है, तो उनको एक फेलोशिप मिली. शी रिसीव्ड ए फेलोशिप टू कंडक्ट हर रिसर्च इन फिजिकल केमिस्ट्री में एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में. ठीक है, सो 1941 में उनको जब फेलोशिप मिली एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में टू वर्क ऑन द फिजिकल केमिस्ट्री. बट ड्यूरिंग दैट टाइम द वर्ल्ड वार वाज मीन्स वर्ल्ड वार 2 जो था, तो विद द एडवांसमेंट ऑफ वर्ल्ड वार 2 it changed her course of action actually, means she also served there then during the World War II, means which forced her to work as a London Air raid warden. And but in 1942 में क्या हुआ कि during the World War के टाइम में ही she left her fellowship, मतलब वो अपनी फेलोशिप छोड़ देती हैं, and she started working for a British coal
यूटिलाइजेशन रिसर्च एसोसिएशन के लिए काम करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वार के टाइम में जब उनको फेलोशिप मिल जाती है 1941 में, मतलब ठीक है, जो फिजिकल केमिस्ट्री कैम्ब्रिज में काम करने के लिए, बट वर्ल्ड वार के कारण क्या होता है कि शी हैज टू वर्क फॉर अदर कंपनीज एंड शी अब अपनी फेलोशिप जो छोड़ देती हैं। ठीक है, एंड शी स्टार्ट वर्किंग फॉर ब्रिटिश कोल यूटिलाइजेशन रिसर्च एसोसिएशन के लिए। ठीक है, जहाँ पे वो वेयर शी इन्वेस्टिगेट्स, जहाँ पे वो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करती है, स्टडी करती है, किसकी, कार्बन और कोल की फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करती है फॉर द बार एफर्ट, क्योंकि उस टाइम बार वर्ल्ड वार 2 जो गोइंग ऑन था, मतलब चल रहा था, तो दैट टाइम कार्बन कोल का बहुत ज्यादा रोल था एनर्जी सेक्टर में। सो दैट टाइम शी स्टडीड अबाउट इन डिटेल अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड कोल। ठीक है, एंड यही इसी काम पे देन फर्दर शी रिसीव्ड हर PhD इन 1945 फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, से उनको PhD अवार्ड की गई। ठीक है, सो जब हम कह सकते हैं कि 1947 में, मीन्स आफ्टर 45 में उनकी PhD कंप्लीट हो गई, तो 1947 टू 1950 ये जो था उनकी लाइफ का, वी कैन से दैट वाज ए गोल्डन पीरियड। मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड में शी अर्न द परफेक्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी विच एक्चुअली लेड टू द फाउंडेशन ऑफ डिस्कवरी ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। सो 1947 से 1950 के बीच में शी वर्कड विद जैक मैरिंग के साथ काम किया उन्होंने। कहाँ पे, स्टेट केमिकल लेबोरेटरी इन पेरिस में, वहाँ पेरिस चली जाती हैं और वहाँ पे वो उनके साथ काम करती हैं। और जो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर वो काम करती हैं और उसमें वो महारत हासिल कर लेती हैं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, एक्सरे डिफ्रैक्शन के, विच स्टडी हेल्प्स इन स्टडीइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स क्या हो केमिकल्स। ओके, सो इस टेक्नोलॉजी में फॉर दिस पीरियड, मतलब वो फ्रांस में जाती हैं, उनके साथ काम करती हैं, मतलब मैरिंग के साथ, और शी गेट परफेक्शन ऑन दिस टेक्नोलॉजी, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर वो परफेक्शन हासिल करती हैं। ठीक है, एंड एक्चुअली फिर उसकी इसी काम के दौरान वो शी वाज एबल टू एक्सप्लोर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट स्ट्रक्चर चेंजेस जो भी आते हैं ग्रेफाइट में, एंड इन द हीटेड कार्बन ग्रेफाइट में क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द हीटिंग कार्बन में, एंड विच वाज वैल्यूएबल फॉर द कोकिंग इंडस्ट्री के लिए वो बहुत जरूरी काम था एक्चुअली। सो वी कैन से दैट ड्यूरिंग दिस टाइम शी गॉट परफेक्शन इन दिस टेक्नोलॉजी। एंड जब वो आफ्टर दिस, मतलब 1947 51 50 तक ये इस टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं, और 51 में क्या होता है कि जब वो वापस आ जाती हैं क्या इंग्लैंड में, क्योंकि उन मतलब वी कैन से दैट आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज इन द क्रिस्टलोग्राफी, जो रोजलिंड फ्रैंकलिन जो है वो इंग्लैंड वापस आ जाती है 1951 में। ठीक है, क्योंकि उनको फिर से टू टेक अवे फेलोशिप एट द किंग्स कॉलेज लंदन में, उनको फिर से एक फेलोशिप ग्रांट हो जाती है किंग्स कॉलेज लंदन में 1951 में। सो आफ्टर नाउ शी वाज एक्सपर्टाइज इन क्रिस्टलोग्राफी and she get a chance to work in the King's College London again and the 1951 and because she get a fellowship, so 1951 में वो वापस लंदन आ जाती हैं क्योंकि उनको फेलोशिप मिल जाती है। ठीक है, तो जब वो वहाँ पे काम करना शुरू करती हैं कि भाई जब वो इनिशियल फेज में ही होती हैं अपनी फेलोशिप की, एंड शी क्योंकि उनको क्रिस्टलोग्राफी में उनको मतलब बहुत एक्सपर्टाइज हो गई थी, तो इसलिए शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज के ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन स्ट्रक्चर को उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू अपने इनिशियल टाइम में ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, बट होता क्या है कि जो मॉरिस बिल्किंस हैं, ठीक है, हु वाज वन ऑफ द अवार्डी ऑफ दिस नोबेल प्राइज, ठीक है, जिसने नोबेल प्राइज शेयर किया था, जो मॉरिस बिल्किन है, ये उस किंग्स जो बायोफिजिक्स लैब है उसका वो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है उस टाइम। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये उसको बोलते हैं कि ओके यू लीव द प्रोटीन्स बट यू वर्क ऑन दिस, उसको डीएनए सैंपल देते हैं। ठीक है, काफ थाइमस का एक डीएनए सैंपल देते हैं एंड ही खासकर उसको कहते हैं कि नाउ यू स्टडी ऑन दिस। ओके, सो इसलिए जो फ्रैंकलिन है और उनकी टीम है जो है वो इस डीएनए के क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीज पे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो वो मतलब दे शिफ्ट देयर वर्क फ्रॉम प्रोटीन टू एक्चुअली डीएनए ऑन स्टडीइंग द डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यूजिंग द एक्सरे इक्विपमेंट और जो माइक्रो कैमरा होता है उसमें, जो रोजालिंड फ्रैंकलिन है और उनकी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी रेमंड गोसलिंग। ठीक है, तो एक्सरे और जब वो स्टडी कर रहे होते हैं इस डीएनए के स्ट्रक्चर को, मतलब विद द क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है, तो एक्सरे के जो रोजालिंड फ्रैंकलिन है और उनकी ग्रेजुएट स्टूडेंट जो होती है रेमंड गोसलिंग एक्चुअली। ठीक है, सो उन्होंने बहुत सारे फोटोग्राफ लेती हैं एक्सरे थ्रू उस डीएनए के, एंड उनको डिफरेंट फोटोग्राफ्स लेती हैं, सैंपल लेती हैं और उनको एनालाइज करती हैं। बट इन द मे 1952, ठीक है, सो मे 1952 को दे टुक ए ग्राउंड ब्रेकिंग फोटोग्राफ एक्चुअली। ठीक है,
सो हम बोल सकते हैं कि ऑन May 22 को वो ऐसा फोटोग्राफ खींचती हैं एक्चुअली विच एक्चुअली चेंज द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. सो 1952 को दे टूक ए ग्राउंड ब्रेकिंग फोटो विच वाज लेबल्ड एज 51. तो फोटोग्राफ 51 एक्चुअली. So this was the photograph 51 which provided the clearest diffraction image of DNA and its helical pattern so far. So it was this photograph 51 actually. So you can see this was the photograph 51 जो कि एक्सरे की शेप में था. So actually this was the photograph 51 which actually laid the foundation of double helical structure of DNA. ठीक है. So we can say that she soon discovered the after के बाद वो उसके ऊपर और काम करती हैं. Then she soon discovered the density of this DNA and established that the molecule exists in a helical conformation. ठीक है, helical form में exist करते हैं DNA के. ठीक है. And her work to make clearer X-ray pattern of the DNA molecule led to the foundation for the James Watson and Crick to suggest in 1953 that the structure of DNA is double helix. ठीक है. सो एक्चुअली इसी वर्क के बेस पे जो वॉटसन एंड क्रिक थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि दे पब्लिश देयर रिजल्ट पब्लिश किए थे कि द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज एक्चुअली डबल हेलिकल. ठीक है. एंड मतलब पॉलीमर है स्पाइरल कंसिस्टिंग ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि कोइल करते हैं स्पाइरल फॉर्म में होते हैं. ठीक है. डीएनए स्ट्रैंड्स एंड दे बॉन्ड विद ईच अदर. ठीक है. सो बट जो फ्रैंकलिन्स की जो इन्वॉल्वमेंट थी इस कटिंग एज डीएनए रिसर्च में इट वाज हॉल्टेड बाय हर अनटाइमली डेथ फ्रॉम द कैंसर इन 1958 में. ठीक है. मीन्स एट द एज ऑफ 37 ही उनकी एक्चुअली डेथ हो जाती है ड्यू टू ओवेरियन कैंसर हो जाता है एक्चुअली उनको. ठीक है. मीन्स वी कैन से हर ऑन मीन्स डीएनए वाज अनफेथफुल एक्चुअली. ठीक है. सो अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड, तो इसके जो क्राइसिस हैं जो एक बैकग्राउंड एक बोल सकते हैं जो ट्रुथ है एक्चुअली क्या है. एक्चुअली क्या होता है कि हमें पता है कि जो मॉरिस बिल्किन है. ठीक है. तो ये वाज द डायरेक्टर एसोसिएट डायरेक्टर होता है उस लैब का, बायोफिजिक्स लैब का जहाँ पे वो काम कर रही होती है किंग्स कॉलेज लंदन में रोजलिंड फ्रैंकलिन है. ठीक है. तो व्हाट ही डू, ये क्या करते हैं कि जो मॉरिस बिल्किन है ये जो एक्सरे फोटोग्राफ है बिना रोजलिंड फ्रैंकलिन को बताए जो उनका फोटोग्राफ है वे इनके साथ शेयर कर देते हैं वॉटसन एंड क्रिक के साथ. ठीक है. तो इनके साथ वो शेयर कर देते हैं. उसके साथ जो उनकी रिपोर्ट होती है रोजलिंड फ्रैंकलिन की इस एक्सरे फोटोग्राफ के ऊपर तो वो भी इनके साथ शेयर कर देते हैं. ठीक है. ये जो मॉरिस बिल्किन है. ठीक है. और जब इनके साथ शेयर करते हैं तो इनको एकदम क्लियर आइडिया लग जाता है कि एक्चुअली में है क्या एक्चुअली ये एंड एक्चुअली व्हाट इज द डीएनए एंड व्हाट इज कुड बी द स्ट्रक्चर वो इजीली एनालाइज कर लेते हैं. ठीक है. तो यू कैन सी है दैट फ्रैंकलिन्स रिसर्च रिजल्ट हैड बीन पास टू क्रिक एंड वाटसन विदाउट हर नॉलेज. बिना उसके नॉलेज के जो इसका फोटोग्राफ 51 था ना इसको जो मॉरिस बिल्किन है इनके साथ शेयर कर देता है बिना फ्रैंकलिन को बताए. ठीक है. अब आप उसको कुछ भी कह लो, चोरी कह लो या कुछ और कह लो, मतलब डिफरेंट थ्योरीज हैं, कुछ भी कह लो, बट इट वाज द ट्रुथ कि ही शेयर द फोटोग्राफ 51 विदाउट हर नॉलेज. ठीक है. तो फिर क्या करते हैं कि ये एकदम से तो मतलब दे एनालाइज दिस थिंग क्योंकि उनको तो बेस मिल जाता है, दे वर वेरी क्लियर. ठीक है. सो वो फ्रैंकलिन से पहले ही अपने रिजल्ट जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में सक्सीड हो जाते हैं एंड दे अपने रिजल्ट जो पब्लिश कर देते हैं पहले ही. ठीक है. मतलब अपने जर्नल में, नेचर जर्नल में 1953 को ही. ठीक है. बट जो फ्रैंकलिन है वो अपने रिजल्ट सेपरेटली गोसलिंग के साथ सेपरेटली पब्लिश करती हैं. ठीक है. सो एक्चुअली क्या है कि हम कह सकते हैं कि एक्चुअली दिस वाज द रिमार्केबल फोटोग्राफ. हम बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकल फोटोग्राफ है एक्चुअली. दिस इज द हिस्टोरिकल फोटोग्राफ विच एक्चुअली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. वो अलग बात है कि अब इसको स्टोरी कह लो या कुछ भी कह लो कि दे स्टोल बट एवर इज इट और ही शेयर्ड दिस फोटोग्राफ विदाउट हर नॉलेज एंड टू विद दिस पीपल एंड दे वर अवार्डेड नोबेल प्राइज बोथ these three. They were awarded Nobel Prize in 1962, but she was kept sidelined and she was never acknowledged during her lifetime. Actually, you can see here that it was her fundamental work actually. Although they analyzed, but still it was her. We can say that was the fundamental. This photograph of Rosalind Franklin, we can say that was the foundation. And although these three people they were awarded Nobel Prize and she was kept sidelined. So this was the paper which they published, molecular structure of nucleic acid. These three people, ठीक है. And so this is the end of
वीडियो मीन्स तो एक जगह कहते भी हैं वाटसन बड़ी काफ़ी टाइम बाद दैट इन हिज मेमोरी दैट डबल हेलिक्स, ठीक है, वाटसन एक्नॉलेज टू हैव यूज्ड फ्रैंकलिन्स डाटा विदाउट हर परमिशन। तो उसके बाद वो एक्सेप्ट करता भी है कि विदाउट हर परमिशन दे यूज्ड हर डाटा, ठीक है। एंड बट जो रोजलिन फ्रैंकलिन थी शी वाज क्वाइट हम्बल, मीन्स जब वो अपने रिजल्ट भी पब्लिश कर देते हैं शी डिड नॉट एक्सप्रेस एनी बिटरनेस टुवर्ड देम, ओके। So rather she cherished, okay, that they explained very nicely that double helical structure of DNA. So she was such a humble lady, ठीक है। So we can see, so you can see that how she was अगर वो उस टाइम अलाइव होती, मतलब नॉट ड्यू टू द अनटाइमली डेथ, तो मे बी she might have shared the Nobel Prize, or maybe she might have get the Nobel Prize twice because जो she was also working with the study of the structure of the viruses, ठीक है, जिसके लिए क्लर्क को लेटर, जो उनके ही स्टूडेंट थे क्लर्क जो थे, उनको नोबेल प्राइज मिला था बाद में, ठीक है। So maybe she might have awarded Nobel Prize twice, who knows, ठीक है। But what we can say that she was the unsung hero of this DNA world, हम कह सकते हैं। So we can never forget her contribution. So our today's lecture is a tribute to her remarkable discovery which has changed the history of world, which has changed the history of mankind, and which has laid the foundation of means in the field of science, technology, medicine, biology and agriculture, ठीक है। So with this I would like to end today's lecture with the quote, a woman's heart holds the light that guides you even in a dark tunnel of life. And similarly, a charming woman doesn't follow the crowd, she is herself. So with this, I would like to end today's lecture. I hope आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको इसके बारे में, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में और जो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की डिस्कवरी के बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरी, मतलब नेचुरली आपको, आई होप यू माइट हैव लाइक द स्टोरी विच इज द ट्रुथ, एक्चुअली ट्रुथ बिहाइंड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड हाउ दिस वंडर वुमन वाज a unsung hero of DNA, and she was kept silent and she was never acknowledged, but actually she is we can say that she is the hero of DNA world. So thank you, and if you like the video, kindly please share, subscribe and like the video. With this I would like to end today's lecture. Thank you very much. Stay happy, stay blessed.